And emotional department in my mind. Everyone, please listen this. The root cause: avoidance, coping, and unprocessed grief. Mention my father passing, and I feel no connection with no reality regarding it. My mother is devastated. My mind is using maladaptive daydreaming because the reality of my father's death and current life is too painful. My brain escape into thoughts, actor, TV, and fame. I feel positive about actor because they represent a perfect world, but negative about my family, mamu, mom, because they represent a real world struggle. Social and environmental department. Root cause: inferiority complex and social anxiety. I feel neighbors see me as a simple or lightweight. Incident with neighbor trash and the fear of communicating with my mamu show a high level of social anxiety. I am overthinking how other perceive me. When I didn't know about the 10 lakh insurance, I feel small. This is why my dream of wearing a black dress and performing, I crave the status I feel lack in neighborhood. Biological and scientific department. The root cause: sleep inertia and anxiety spikes. Waking at 9:30 a.m. with a heavy head and scary dreams is a sign of poor sleep quality and high cortisol stress hormone levels. Scrolling phone before bed during the day keeps brain in a state of high beta waves. This leads to REM rebound, where dreams become incredibly vivid, sexual, frightening because brain is trying to process too much dark data from the screen. Career and hard work department. Passive consumption versus active creation. I watch Elvish Yadav process and I want to edit videos, but stuck in the thought of rather than act of it. I am comparing my behind the scenes with someone else highlight reel. I edit Mamu's cooking video, feel negative because I feel like work, whereas watching TV feels like a reward. Biggest root cause is mental disconnection. I feel 90% in headphone and 10% in reality. This is I feel scared of simple conversation with neighbor. I've lost practice in the real world. I have touched my phone in the morning. I must do one physical task in the home, clean shelf, make tea, talk to mom 10 minutes. This break the dream state. I stopped trying to okay with father's death. This is okay to cry. This reason I escaping to TV act is that I not allowing myself to daughter who is lost a lot. तो एक बुक लिखनी शुरू करते हैं, द स्क्रीन बिटवीन अस, अ जर्नी फ्रॉम पिक्सल टू रियलिटी, या फिर कोई ऐसा नाम जो आपको कनेक्ट करे। मेरे दिमाग में एक सिनेमा हॉल है जो कभी बंद ही नहीं होता। वहाँ एल्विश यादव से लेकर टीवी एक्ट्रेस तक की फिल्म चलती है, पर जब पर्दा गिरता है और मैं अपने पड़ोसी को कचरा फेंकते देखती हूँ तो मुझे स्क्रिप्ट याद नहीं आती। मैं एक ऐसी लड़की हूँ जो स्क्रीन पर तो परफेक्ट एक्टिंग देख रही है, पर अपनी रियल लाइफ को डायरेक्शन में खो गई है। ये किताब मेरे उस संघर्ष की है जहाँ मैं एक एक्टर बनना चाहती हूँ, पर अभी सिर्फ एक ऑडियंस बनकर रह गई हूँ। मैंने कहा कि एक्टिंग की तरफ जा रही हूँ क्योंकि इंस्ट्रक्शंस वहीं फॉलो कर रही हूँ, तो एक्टर इस मेथड में कन्वर्ट करते हैं ताकि फोकस वापस आ जाए। जर्नलिंग को बोरिंग डायरी मत समझिए, ये एक लाइफ की स्क्रिप्ट होती है। हर रोज़ आप लिख रहे हैं, हर रोज़ ऐसे लिखिए, एक कैरेक्टर के लिए एक सीन लिख रही हैं। आज कैरेक्टर्स ने पड़ोसी से बात करने की कोशिश की, डर लगा। क्यों लगा? क्योंकि कैरेक्टर को लगता है लोग उसे सिंपल समझते हैं। इससे इमोशन से थोड़ा डिटैच हो पाएंगी और ऑब्जेक्टिवली देख पाएंगी। वीडियो देखने से दिमाग पैसिव हो जाता है, एक्टिंग के लिए स्क्रिप्ट लिखनी पड़ती है। सिर्फ 15 मिनट अच्छी बुक के स्क्रिप्ट जोर जोर से पढ़िए, इससे स्पीकिंग की दिक्कत दूर हो जाएगी, दिमाग का नया शब्द बदल जाएगा। सो दिस इज़ द मेंटल प्रोसेस। पापा का ना होना और उनका एहसास, सोशल एंग्जाइटी एंड नेबर्स, ड्रीम्स और डिस्ट्रैक्शन, एंड ऑफ द मंथ में सारे एपिसोड मिलकर एक पूरी सीरीज बन जाएंगे। जब किचन में काम करें या मामू से बात करते हो तो इस एक्टिंग सेट मत समझिए, वहाँ फोकस रहना ही एक्टिंग प्रैक्टिस है। आप फोकस नहीं कर पा रही हैं, कैमरे के सामने भी फोकस नहीं हो पाएगा। पैराडॉक्स ऑफ साइलेंस। प्रियंका। प्रियंका 20 में एक लड़की, शहर बठिंडा, सपने, एक्टिंग और ग्लैमर, रियलिटी, किचन की दीवारें और पड़ोसियों का जज करना। लोग मुझे सिंपल समझते हैं। जब पड़ोस वाली आंटी ने कचरा फेंका और मैं उनकी बेटी से बात की तो मेरा दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे कोई मुझे मुश्किल एग्ज़ाम दे रही हूँ। मैं अंदर से काँप रही थी पर बाहर से एक्टिंग कर रही थी कि मैं ठीक हूँ। मेरे दिमाग में वो दुनिया चलती है, एक वो स्क्रीन वाली दुनिया जहाँ अलविश यादव जैसे लोग लगातार एक्शन कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, पर मैं एक असली दुनिया जहाँ मेरे पापा अब नहीं हैं। लोग कहते हैं कि वो चले गए हैं, पर मेरा मन ये सच को स्वीकार ही नहीं कर रहा। मैंने दिमाग के कोने में उन्हें ज़िंदा रखा है और बाकी कोने में टीवी सीरियल्स के कैरेक्टर्स को बसा लिया है। सो
जब मैं मिताली द डॉक्टर को देखती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं वो डॉक्टर हूँ, पर जैसे ही किचन में बर्तन की आवाज़ आती है तो मैं वापस प्रियंका बन जाती हूँ। इंश्योरेंस के कागज़ मेरे लिए सिर्फ़ कागज़ नहीं है, मेरी इग्नोरेंस का सबूत है। जब लोग मुझे हल्के में लेते हैं, तो वो मेरे दिमाग की उस गहराई को नहीं देख पाते, जहाँ मैं हर रोज़ हज़ारों स्क्रिप्ट लिखती हूँ। मेरे सपने मेरी एक्टिंग की स्टेज हैं, वहाँ मैं डरती हूँ, वहाँ मैं ब्लैक ड्रेस पहनकर परफ़ॉर्म करती हूँ, पर जब मामू मुझे हैरानी से देखते हैं, तो सपने में भी मुझे लगता है कि मैं गलत रास्ता चुन लिया है। गर्ल इन द स्टैटिक धुंधली यादें वेट ऑफ बीइंग सिंपल। रात के 11 बज रहे हैं, अब ठंडा की ठंड या मेरे अंदर की बेचैनी समझ नहीं आ रहा। मेरा दिमाग में एक ब्राउज़र खुला है जहाँ एल्विश यादव की वीडियोज़ और मेरे पापा की डेथ के प्रिंट्स एक साथ चल रहे हैं। लोग कहते हैं कि पापा चले गए, पर मेरा मन उन्हें फ़िरोज़पुर की गलियों में ढूँढता है, जो शायद अपने ही दिमाग या किसी बंद कमरे में। आज किचन में काम करते वक़्त मुझे लगा कि मैं एक एक्टर हूँ, जो हाउसवाइफ़ का रोल कर रही है। पर एक्टिंग तब टूट गई जब पड़ोसियों की नज़र मुझ पर पड़ी। उनको लगता है कि प्रियंका बहुत सिंपल है। उन्हें क्या पता कि सिंपल लड़की के दिमाग में कितना कॉम्प्लेक्स सीन चल रहे हैं। जब उन्होंने 10 लाख का बीमे की बात की तो मुझे लगा कि एक्टिंग ही भूल गई हूँ। मुझे डर लगा, वो डर जो एक स्टूडेंट को टीचर के सामने लगता है। मामू के लिए वीडियो एडिट करते वक़्त मेरा गुस्सा मेरी उँगलियों से निकल कर स्क्रीन पर जा रहा था। मैं उनके लिए एक नेगेटिव सोच रही थी, खुद के लिए नेगेटिव सोच रही थी, पर जैसे टीवी की स्क्रीन पर कोई एक्ट्रेस आती है, मेरे अंदर की पॉजिटिविटी की लेकर दौड़ती है। शायद इसलिए क्योंकि मैं एक्ट्रेस वही है जो मैं बनना चाहती हूँ। और प्रियंका वो जो 9:30 बजे जब मेरी आँख खुलती है तो मैं एक डर के साथ उठती हूँ। सपने में यशिका थी, ब्लैक ड्रेस थी और एक अजीब-सा कन्फ्यूज़न था, क्या मेरा करियर है? क्या मेरी मंज़िल है? ऑथर कहते हैं कि हर स्ट्रगल का एक अंजाम होता है, पर मेरी स्क्रिप्ट का सिर्फ़ पहला पन्ना लिखा गया है। जब अपने पड़ोसी को कचरा फेंकते देखा और उनसे बात की, तो दिमाग के अंदर कौन-सा डायलॉग चल रहा था जो ज़ुबान पर नहीं आया। इस समय वो डर हल्का होने की फीलिंग के शब्दों में। उनसे बात ही नहीं कर पाई थी। द मास्क। मेरा टीवी एक्टर से एल्विश यादव को देखकर पॉजिटिव फ़ील करती हैं, खुद को देखकर नेगेटिव। आपको अपनी लाइफ़ के लिए एक पॉजिटिव ट्रेलर बनाना हो तो उसमें प्रियंका की कौन-सी 2 खूबियाँ दिखाई जाएगी? डांस और स्पेशली लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल अ, टीचिंग स्टाइल लाइक थ्री इडियट्स। एम्पैथी चेयर, पापा की कमी। आपने कहा कि यहाँ कोई नहीं है कि नहीं होता कि पापा नहीं है। अगर आप उन्हें एक आखिरी लेटर लिखें जिसमें बताएँ कि बठिंडा में कैसे रह रही हैं और दिमाग कहाँ भटक रहा है, तो पहली उनकी लाइन क्या होगी? कहूँगी कि मेरा दिमाग भटक रहा है एक्टिंग के बीच में बहुत ज़्यादा। थैंक यू।